So students, our next question is question number 23. In the reaction A plus B2, it gives AB2. Identify the limiting reagent if any in the following mixtures. तो हमें ये मिक्सचर्स दे रखा है, राइट? तो ये रिएक्शन है गिवन, इसमें हमें फाइंड आउट करना है इस क्वांटिटी के साथ कि कौन सी क्वांटिटी ए और बी की लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस. द फर्स्ट इज 300 atom of A plus 200 molecules of B. So let us see. Firstly, we will write the reaction. A plus B2 react with AB2, right? So from here, what we can say? We can say 1 mole of, or what you can say here, value is given to us in atoms. So let us see what is given. 300 atoms or 200 molecules. So we can say from here, when 300 atoms react with 200 molecules, what it will give, right? So how we can find out this? So see, according to the given reaction, what we can say, 1 atom of A, right? So here is 1 atom of A react with 1 molecule of B, right? 1 atom of A react with 1 molecule of B. Okay, so but what else is given to us? Here is 3 atoms or 200 300 atoms or 200 molecules that is given to us, right? So if 200 molecules of B, if 200 molecules of B react with 200 atoms of A, so what else is left? देखो 200, हमारे पास एक एटम था तो एक मॉलिक्यूल के साथ ही वो कंबाइन करेगा, राइट? अब 200 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 200 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो 200 एटम्स के साथ ही कंबाइन करेंगे, राइट? सो दिस इज, वी कैन राइट here, this is given to us, and what we required to take place the reaction, here we require 200 atoms, right? 200 atoms की ज़रूरत है. तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? 100 जो एटम्स है वो हमारे क्या हैं, एक्स्ट्रा बच रहे हैं. 100 एटम्स वो क्या है, हमारे एक्स्ट्रा बच रहे हैं. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? व्हाट वी कैन से, we can say B is the limiting reagent, right? B is the limiting reagent which we have to find out, right? B limiting reagent हो जाएगा और जो A है वो क्या हो जाएगा, excess reagent, क्योंकि excess amount में present है और जो भी प्रोडक्ट बनता है वो हमारा limiting reagent को ध्यान में रख के ही बनता है, right? So ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा. So it is limiting reagent and A is the excess reagent. So what we can say, B is the limiting reagent and A is the excess reagent. I hope this is clear, right? So we have to find out limiting reagent. So next is 2 mole of A when combined with 3 mole of B. So students, this is the reaction. A plus B2 gives us AB2, right? So what is given when 2 mole of A react with 3 mole of B? Okay, so we know that according to this reaction, what we can say, when 1 mole of A react with 1 mole of B, so it will give 1 mole of AB2, right? So when 1 mole of A react with 1 mole of B, अगर 1 मोल A का 1 मोल ही B के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हमें 1 मोल का ही प्रोडक्ट दे रहा है, राइट? सो दिस, बट व्हाट इज गिवन टू अस, हमें गिवन है 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ B. ओके, बट जब 2 मोल ऑफ A है तो जो B है
वो भी तो 2 मोल होना चाहिए, राइट। सो जो 3 मोल है वो हमें, जो 1 मोल है यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो 1 मोल है वो हमें ज़्यादा दिया हुआ है, या फिर वो जब भी रिएक्शन होगी 1 मोल इसमें क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट, और जो हमारे पास लिमिटिंग अमाउंट में है वो हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट अस सी द अनदर part. 100 atoms of A plus 100 molecules of B. So this is the reaction which is given. Okay. अब 100 atoms of A, 100 molecules of B. So as we know, according to this reaction, 1 atom of A react with 1 atom of B, right? अगर A के पास 100 atoms हैं तो B के पास भी कितने होने चाहिए, 100 molecules होने चाहिए, राइट। तो रिक्वायर्ड भी हमें 100 मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स इट इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट, राइट। सो रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है और कोई भी एक्सेस रिएजेंट नहीं है, जो रिएक्शन है वो हमारी टेक्स प्लेस हो जाएगी इजीली। नेक्स्ट पार्ट देखो, 5 मोल ऑफ A प्लस 2.5 मोल ऑफ B, राइट। सो दिस इज द रिएक्शन, A प्लस B2 गिव राइज टू AB2. So 5 mole of A given to us and 2.5 mole of B. But according to this reaction, what we can say, 1 mole of A react with 1 mole of B, right? So 1 mole of A react with 1 mole of B, right? तो यहाँ पे जो A के मोल है वो हमें 5 दिए हुए हैं, बट जो B के मोल है वो हमें कितने दिए हुए हैं, 2.5, राइट। और रिक्वायर्ड हमें कितने हैं, 5, रिक्वायर्ड हमें कितने हैं, 5। तो यहाँ से डिफरेंस देखो आप कितना आ जाएगा, 2.5 मोल का डिफरेंस आ रहा है। तो मीन्स जो 2.5 मोल है वो क्या है, यहाँ पे कम है, राइट। सो इट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट हियर। आई होप दिस इज क्लियर। सो लाइकवाइज वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 2.5 मोल ऑफ A and 5 mole of B. I hope this is clear to all of you, and now you can also do this part yourself. So see, A is given 2.5 mole, right, and B is given to us 5 mole. और हमें पता है कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग when 1 mole of A react with 1 mole of B, it will give 1 mole of AB2, right? So 1 mole of A means 2.5 mole हमें गिवन है A के, और जो B है वो उसके हमें कितने गिवन है, 5 मोल। तो जो हमें रिक्वायर्ड है वो कितना है, रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ A मीन्स यहाँ पे हमें 2.5 मोल ही रिक्वायर्ड है, बट हमें दिया कितना हुआ है, 5 मोल। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, एक्सेस रिएजेंट, राइट। सो इट इज एक्सेस रिएजेंट, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, A विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। I hope this question is understood by all the students. I hope that question is understood by all the students. Now we will move to question number 24. Dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. Okay, देखो डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन दिया हुआ है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो वो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज गिवन टू अस, राइट। सो देख लेते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2.00 into 10⁻³ ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1.00 10⁻³ ग्राम डाइहाइड्रोजन, राइट। तो जो अमोनिया है हमें इसका मास निकालना है, ठीक है, अमोनिया का हमें मास निकालना है अगर हमें इनका मास गिवन है। ओके, सो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। सो सी फर्स्टली वी विल राइट द रिएक्शन हियर, N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3, ठीक है। अब हमें मास ऑफ अमोनिया निकालना है, लिख लेते हैं इधर। ओके, सो दिस वैल्यू इन ग्राम्स इज गिवन टू अस, राइट। सो इफ 2.00 10⁻³ ग्राम डाइनाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मास हमें दिया हुआ है और हाइड्रोजन का भी मास दिया हुआ है। हम इसको लिख लेते हैं। अगर हमें मास गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, राइट, वेरी गुड, वी कैन राइट द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन विल बी 28,
right? So likewise we will calculate the number of moles in dihydrogen. So mass is given to us, so we will divide it by molar mass. So number of moles in both these, so we have given with dinitrogen 71.43 mole or dihydrogen is 500 mole, right? So ये देखो 1 mole of nitrogen when combined with 3 mole of hydrogen, right? So 1 mole of nitrogen किसके साथ कंबाइन कर रहा है? 3 mole of hydrogen के, तब हमें 2 mole of अमोनिया मिल रही है, ठीक है? तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे? सो हमें रिक्वायर्ड क्या है? 1 mole of नाइट्रोजन जब कंबाइन कर रहा है, राइट? तो हमें एक की वैल्यू फिक्स करनी होती है, तो हम नाइट्रोजन की वैल्यू फिक्स कर देते हैं। तो 1 mole of नाइट्रोजन जब कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 71.43 मोल्स, राइट? और जो हाइड्रोजन के मोल्स हैं वो हमारे यहाँ 500 मोल्स। तो इतने मोल्स की हमें रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन के लिए। अगर हम हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट करें, सो इट विल बी 71.43 इंटू 3, राइट? सो इट विल बी 214 मोल, इतनी, राइट? सो जो गिवन है हमें हाइड्रोजन के लिए वो है हमें 500 मोल, पर हमें रिक्वायरमेंट है 214 की। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जो ये है हमारा हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट, राइट? तो ये क्या है? हमारा एक्सेस रिएजेंट है, राइट? और जो हमारा नाइट्रोजन है वो क्या हो गया? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। सो लेट अस सी 1 mole of नाइट्रोजन gives 2 mole of अमोनिया। अभी हमने पढ़ा था 1 mole of नाइट्रोजन हमें 2 mole of अमोनिया दे रहा है, राइट? तो हम अगर 71.43 मोल्स में अगर हम निकाल लें तो कितने मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास आ जाएगा? तो 71.43 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स अस 142.86 मोल, राइट? तो अमोनिया के हमारे पास मोल्स आ गए। अगर हमारे पास अमोनिया के मोल्स आ जाते हैं, हमें निकालना क्या था? हमें मास निकालना है। अगर हमारे पास मोल्स आ गए तो हम मास इजीली निकाल सकते हैं, राइट? तो हम मास निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए हैं, दैट इज 142.86। मास हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अमोनिया का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है? 17 ग्राम। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू वी विल गेट द mass of ammonia, that is 2.43 into 10 to power 3 ग्राम। सो फर्स्ट जो हमारा पार्ट था, हमें अमोनिया का मास कैलकुलेट करना था, वो हमारा सोल्व हो गया। ओके, सो सी व्हाट इज द एल्स गिवन अस इन द क्वेश्चन? विल एनी ऑफ 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। अब इसने बोला है कि कोई इन दोनों में से कोई बचा, मतलब जो भी रिएक्ट हुआ है, राइट, रिएक्टेंट, तो उनमें से कुछ रिमेन रहा है, कुछ लेफ्ट हुआ है, बचा है कुछ, राइट? एक्सेस रिएजेंट कहने का मतलब है कि एक्सेस रिएजेंट है कोई। अगर है, इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। अगर है तो उसका हमें क्या निकालना है? मास निकालना है, राइट? सो हमने यहाँ से देखा था, देखो एक्सेस रिएजेंट हमारा पता चल गया था हमें क्या है। एक्सेस रिएजेंट क्या है? हमारा हाइड्रोजन, राइट? तो जो हाइड्रोजन है वो हमारा क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। तो अगर हम 500 मोल में से 214 को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, राइट? हमारे पास मास इसका मोल्स में वैल्यूज आ जाएगी और उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मास में, क्योंकि हमें मास उसका पूछा गया है। तो लेट अस सी, तो हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड, राइट? तो 500 मोल में से हम 214 को अगर माइनस कर दे तो हमारे पास 286 मोल्स आ जाएंगे, राइट? 286 मोल्स आ गए। तो अब 286 मोल्स का हमें मास में अगर हम चेंज करते हैं, राइट, अगर मोल्स है हमारे पास तो हम वही सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो जो मास है हमारा कितना आ जाएगा? 286 इंटू 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए जो मोलर मास होगा वो क्या होगा? 2। सो मास विल बी 572 ग्राम। I hope this is understood all.
So now we will move to our next question, that is question number 25. How are 0.50 mole of sodium carbonate and 0.50 m, right, means molarity of sodium carbonate different? तो हमें 2 वैल्यूज गिवन हैं. सो देखो ये वाली टर्म जो हमें गिवन है और ये वाली टर्म, देखो डिफरेंस मोल और कैपिटल एम, इसका डिफरेंस है. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसमें क्या डिफरेंस है. देखो मोलर मास अगर हम निकाल लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का सबसे पहले, तो सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या हो जाएगा? दैट इज 2 × 23 + 12 + 3 × 16, सो इट विल बी 106 ग्राम पर मोल. तो मोलर मास हमारे यहाँ से फाइंड आउट हो गया. तो 0.50 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या मतलब है? अगर हम यहाँ से हमारे पास अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट. तो नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने गिवन है? दैट इज 0.50, राइट. मास कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. मोलर मास हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 106. ओके, सो मास यहाँ से आ गया सोडियम कार्बोनेट का 0.50 × 106, राइट. तो यहाँ से हमारा जो मास है वो कितना आ जाएगा? 53 ग्राम. ओके, सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? जो ये मोल है 0.50 मोल, ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ये हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है, राइट. सो मोल रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस. मोल हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहा है. 0.50 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट का मतलब है कि जो सोडियम कार्बोनेट की अमाउंट है वो कितनी है? 53 ग्राम. तो बेसिकली जो मोल है वो हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है किसी भी सब्सटेंस की. कैपिटल एम मोलर की वैल्यूज देख लेते हैं. मोलर रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट. तो जो मोलर है वो किसके बारे में बताएगा? हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में बताएगा. ओके, तो 0.50 मोलर sodium carbonate means 0.5 mole, that is means 53 gram of sodium carbonate are present in 1 liter of solution, right. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है वो किस में प्रेजेंट है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में. मींस ये जो मोलर है वो बेसिकली कंसंट्रेशन बताता है हमें सॉल्यूशन की, और जो मोल है वो हमें क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है किसी भी सब्सटेंस की, राइट. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू.